मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने चलो एक शुक्र है कि उन्होंने ये कहा कि जो CHC का ऑर्डर हुआ है इसका मतलब है कि वो विथड्रॉ नहीं हुआ है। 99 में हॉस्पिटल थन्ना मंडी जो है वो CHC बना है। इन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कि वो कम से कम हमें कोई टाइम फ्रेम दे दें कि वहाँ पोस्ट क्रिएट्स होगी। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मंजाकोट में PHC मंजाकोट में एक डॉक्टर उन्होंने कहा है कि हमने भेजा हुआ है, लेकिन वो इन दिनों अगर गया जिस दिन मैं वहां से आया हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां था नहीं। इन बिटवीन अगर कोई एक डॉक्टर भेजा है इतने बड़े इलाके में तो मैं कहूंगा कि वो भी इनसफिशिएंट है। अगर हैं ही 2 डॉक्टर और थाना मंडी में 4 डॉक्टर्स की NHM की पोस्ट है लेकिन एक भी नहीं है इतने बड़े इलाके में, जिसको 99 में CHC बनाया गया, आज तक वहां एक भी NHM का डॉक्टर जो है वो नहीं पोस्ट किया गया 4 पोस्टों के अगेंस्ट में। तो मैं चाहूंगा कि हमें कम से कम कोई टाइम फ्रेम दे दे कि कब तक वो इसको फिलअप करेंगे। सर मैंने पहले ही इनको जवाब में, क्योंकि ये अपग्रेड हुआ था जैसे खुद ऑनरेबल मेंबर ने एक्सेप्ट किया है 1999 में, उसके बाद जो है इसका फंक्शनिंग जो है वो एज PHC ही है। तो अब पोस्ट जो है वो क्रिएट नहीं किए गए हैं, तब से लेके आज तक इतना टाइम गुजर गया है। आप खुद अंदाजा लगाए 99 से लेके आज तक कितना अरसा गुजर गया है, लेकिन क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूंगी, जैसे हमने खुद इसमें जवाब में कहा है कि हम जल्दी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है कम्युनिकेशन करके वो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी इन पोस्ट को वहां से क्रिएट किया जाए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा जी, थैंक यू और सजाद गनी, मोहन शहीद अहमद कुल्ले, ये क्लबड क्वेश्चन है जिन्हों को सवाल एक ही है, इसलिए हम इसको क्लब किया है। पूछे आप। AQ 447। यस, मिनिस्टर इन चार्ज पावर। AQ 447, 648 and 734. Part A, the government shall provide 200 units of free electricity to all AAY households integrated with the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. The proposal aims to benefit all households falling under the AAY category by providing them with free electricity up to 200 units, thereby alleviating their financial burden and improving their quality of life. This shall be done through the RESCO utility-led aggregation model or any other financially viable model to benefit the aforementioned households. Regarding electricity bills, it is stated that consumers in J&K are charged heavily subsidized tariffs, especially in the domestic category. The current tariff for domestic consumers ranges from ₹2.30 per unit up to 200 units per month to ₹4.35 per unit, which is amongst the lowest in the country. For the BPL or below poverty line category, the tariff is even lower at ₹140 per unit for consumption up to 30 units per month. In comparison, the average cost of power supply is around ₹7 per unit. As such, there are no excessive bills being charged to consumers. Metered consumers are billed based on actual consumption, while unmetered consumers are billed on a flat rate basis, which is determined by their sanctioned agreed load according to the applicable tariff slabs. Further, in case of any billing related complaints from consumers, these are promptly examined and addressed as per the Electricity Supply Code. As regards the waiving of excessive electricity bills, it is to be mentioned that unpaid electricity bills over months or years results in an accumulation of arrears. Even in such cases, in an effort to streamline the billing and collection systems, an opportunity to waive the interest surcharge component on outstanding electricity arrears has been provided to domestic consumers to clear their dues under the ongoing amnesty scheme. The government intends to extend the existing amnesty scheme with modifications, as announced by the Minister in Charge Power during his reply to the discussion on the grants. A large number of consumers from almost every district have already benefited from this scheme. Part B. Regarding the financial implications of providing 200 units of free electricity, the department has decided to adopt the RESCO model for the installation of solar rooftop systems at premises of AAY households which are mostly located in hilly areas. This approach will enable local electricity generation, eliminating the costs associated with transmitting and distributing electricity from distant generators. Additionally, the subsidy provided by the ongoing scheme will be leveraged. A survey of the target beneficiaries is being initiated, and once completed, taking the factors mentioned above into account, a financial model will be finalized
to ensure the most suitable and sustainable implementation. C. The power tariff for DISCOMs is already heavily subsidized. Any reduction or increase in the tariffs is regulated and decided by the JERC. सर एक सप्लीमेंट्री था। एक तो ये कहा गया हो कि AAY को इंटीग्रेट करेंगे मुफ्त बिजली योजना के साथ, जो आंसर दिया हुआ है। मेरा एक सप्लीमेंट्री है, ये जो लोगों का एक्सेसिव बिल्स हैं, बिजली के बिल्स हैं, कहा गया हुआ है कि जो ऑलरेडी एमनेस्टी स्कीम है उसको एक्सटेंड करेंगे। क्या जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कम करेंगे, नहीं करेंगे? उसको कम करना चाहिए। मेरा पूछना था सीएम साहब से। वो तो एमनेस्टी स्कीम में लिखा हुआ है क्या काम होगा क्या नहीं काम होगा। एमनेस्टी स्कीम इज ऑलरेडी इन वोग, दैट इज ऑलरेडी इन वोग। पर कहा गया था कि हम 200 यूनिट्स फ्री बिजली सबको देंगे। वो तो बताया मैंने जवाब। हाँ, वो AAY आ गया यहाँ। दूसरा कहा गया था कि हम जो बिल आए हुए उनको माफ करेंगे। तो स्कीम तो एमनेस्टी, वो तो उसके जो इंटरेस्ट और सरचार्ज है उसके ऊपर है। जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें लिखा गया था हम बिल को माफ करेंगे। मैं सोचता हूँ प्रिंसिपल को माफ करेंगे, क्या करेंगे उसकी में? आप जरा पूछिए सजा साहब, आपका क्वेश्चन है ये। स्पीकर सर, ये सवाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनिफेस्टो पूछा गया था। हम सिंपल सवाल है, क्या बिजली सिर्फ AAY वालों को मिलेगी या जैसे मैनिफेस्टो में लिखा था कि सबको मिलेगी? He will have to, Honorable Chief Minister will have to clear that. Number two, जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, जब आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो लिखा था, ये सब चीजें वहां थी। इसका मतलब है कि आपके आने के बाद कोई नई कंसेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी गई। थर्ड, इवन जो ये सोलर रूफटॉप्स का जो है रेस्को मॉडल का है इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, क्योंकि इसका 3 किलोवाट, I think 3 kilowatt is the upper limit. I don't think it will even generate less than 200 units as an average per month. So कहीं ऐसा ना हो दिन में आप बिजली लें कंज्यूमर से, रात को जब उसको जरूरत पड़ेगी तब तो सोलर चलेगा नहीं। हाँ ठीक है, बिलिंग होगी, वो ग्रिड को सप्लाई करेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल हैव टू बी क्लियर, वर यू इकोनॉमिकल विद ट्रूथ व्हेन यू आर राइटिंग द मैनिफेस्टो, और आर यू बीइंग इकोनॉमिकल विद ट्रूथ नाउ? शबीर साहब पूछिए, आपको क्या पूछना है? नहीं, ये तो क्वेश्चनर हैं। एक इनका एक क्यों है, इन तीनों का एक ही एक क्यों है? सर, इसमें जो मेरा सवाल था, एक तो इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात है कि 200 यूनिट्स फ्री, उसके बाद क्या हुआ है सर? सितंबर में जो बिल थी 800 रुपए की पर हाउस होल्डर, अक्टूबर में उसको 1200 पे पहुंची, नवंबर में वो 1800 पर पहुंची और दिसंबर में वो 2000 पे पहुंची। तो मेरा ये कहना है कि सर, अगर हम अभी तो हमने फ्री बिजली दी ही नहीं है, अभी तो इसका बहुत जो मॉडल आप बता रहे हैं तो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकेबल मॉडल। ये आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह हम स्विट्जरलैंड की बात हम कश्मीर में करेंगे, ये नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंपेयर। तो जो आपने कहा था कि बिजली फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने में अगर कहीं 800 की बिल आती थी वो 1200 में आती है, फिर 1400 में आ गई और दिसंबर जनवरी में वो 1800 तक पहुंची। सवाल मेरा ये है कि अगर हम बिजली तो इसमें आप जवाब आ गया कि हमारा जो टेरिफ है सबसे लोएस्ट है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये पिछले 4 महीनों में कैसे ये 800 से 1200 से ये अभी मीटरिंग तो हुई नहीं। इट टू हैव यूनिफॉर्मिटी थी, 1200 सबको मिलता था, 1200 या 800, अभी तो न मीटर्स है न कहीं है। तो 800 का जो इजाफा हुआ पर मंथ 200, 300, तो उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या इसमें क्या रोल है? अब सवाल आ गए, आपको रिस्पॉन्ड करना है। पहले सवाल आ गए ना, सवाल आ गए इस तरह से नहीं। आपने तो सवाल पूछा, जवाब सुनिए ना। आपने तो पूछा, तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। कोई बात। स्पीकर साहब, इसी सेशन के दौरान 3 बार तफसीलन इस पे बात हुई है। ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन में, फिर बजट में और फिर ग्रांट्स में। अब वही चीज मैं बार बार फिर दोहराऊंगा। हमारा जो मैनिफेस्टो में वादा है
जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं, आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं, अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अब इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे, किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहां तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया, जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशंस पे हम प्रिंसिपल को ला सकते हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं। इरफान हफीज लोन साहब, हो गया आपका सवाल तो आ गया। सर 25 लाख हाउस होल्ड्स हैं, 40,000 आप साल में कर रहे हैं, इस रेट में 50 साल लगेंगे। 50 साल आप रहेंगे नहीं यहाँ। आप मेरी बात सुनिए, दिस इज अर्थमेटिक, दिस इज अर्थ। आप उसको, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, ये बोल रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम तो सबका होता है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, यस और नो, वन वर्ड एंड व्हेन, दैट्स इट। मेरी अंग्रेजी शायद सजाद साहब से बेहतर है नहीं, इसलिए मैं कम इस्तेमाल करता हूं। बट विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल 2 है, सवाल 2 के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार कहा, हम इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे। इरफान हफीज लोन साहब, इरफान हफीज लोन साहब, पूछे सर AQ नंबर 867, मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर। AQ number 867. The provisions for preventing the agricultural land are provided in Jammu and Kashmir Land Revenue Act 1996 under section 133A of the said act. No land used for agricultural purposes shall be used for any non-agricultural purposes except with the permission of the district collector. Further, as per section 133A of Land Revenue Act SBT 1996, agricultural land up to 400 square meters can be converted for residential purposes. Under section 133C of said act, any land converted for other purposes in violation of provision section 133A or section 133B or section 133BB shall ensheet the government, and there is punishment for such offences who have contravened the provisions of section 133A, B or BB, and shall be punishable by the collector or any officer not below the rank of an assistant collector of first class up to rupees 25,000. The Board of Revenue Wide number 1 JK BOR of 2022 dated 14/1/2022 has notified detailed regulations, prescribed forms and fixed fee for conversion of agricultural land to non-agricultural purposes, which also has monitoring provisions. Part B. The Jammu and Kashmir Land Grant Act 1960 provide for grant of state land on lease by the government. The Jammu and Kashmir Land Grants Act Rules 2022 have been notified by SO 668 dated 19/12/2022, which has provision for grant of land on leases for various purposes. The rules further provide that all leases except the subsisting expired residential leases, including lease granted under the Jammu and Kashmir Land Grant Act Rules 1960 notified area, all development authorities set in tourism sector, land grants rules 2007,
and leases expired or determined prior to the coming into force of these rules or issued under these rules shall not be renewed and shall stand determined. सर, इसमें लैंड ग्रांट्स एक्ट की बात हुई है कि विच प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड, लेकिन सर हमारी गुजारिश ये है सर, हमने स्टेप्स गवर्नमेंट ऐसे ले, क्योंकि लॉ इज इन फोर्स बट डिस्पाइट दिस लॉ देयर इज अ ब्रेजन वायलेशन ऑन ग्राउंड। जैसे सर बंजर कदीम लिख दिया, 133 ब्रेजनली ये ग्राउंड पे कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें जो पनिशमेंट है वो भी 25,000 रुपए है अगर कोई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैंड को कन्वर्ट करे नॉन एग्रीकल्चर। तो सर हम ये चाहेंगे कि स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए जाए ताकि ये एग्रीकल्चर लैंड जो है ये कन्वर्ट ना हो। आगे आपका सजेशन। थैंक यू। एडवोकेट विजय कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 119। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। AQ number 1198. No, sir. At present, no such recommendation has been received regarding the upgradation of the Munsif Court, JMIC in Hiranagar to the level of an additional district and session court or sub-judge court. Sir, I'll put certain facts for the Honorable House, sir. Sir, barring District Kathua, there are 5 municipal courts in District Kathua, 1 at Hiranagar, 2 at Bilawar, 1 at Mahanpur, another at Basoli and Bani, sir. Currently, sir, what is the status of cases which are pending for the respective municipal courts, sir? Here in, sir, municipal court Hiranagar, there are about 2,354 cases which are pending. Apart from this, sir, 750 miscellaneous files they are also pending for a single judicial officer, sir. So, what is the position? Rest of the court, sir. In Bilawar, sir, there is one municipal court and another is additional special mobile magistrate, sir. So, what is the status there, sir? मैंने बिलावर की बात नहीं नहीं सर, मैं काइंडली लिसन मी सर, आई एम नॉट जस्ट हाँ सर, मैं इसी पर आ रहा हूँ सर, आई एम पुटिंग द फैक्ट सर, काइंडली कंपेयर इट सर, आई विल नॉट सीक मोर टाइम सर। कहने का बावजूद सर, जब बिलावर में 2 कोर्टें हैं, दोनों कोर्टों में 961 केसेज हैं, महानपुर में 206 केसेज हैं, बसोली में 410 केसेज हैं सर, और जो बनी में 583 केसेज हैं। ये हीरानगर में टोटल जो एक सिंपल म्युनिसिपल कोर्ट है सर, एक सिंगल जुडिशियल ऑफिसर है, वहाँ 2354 केसेस अपार्ट फ्रॉम 750 मिसलेनियस फाइल्स, और इन 5 कोर्ट जो है बाकी में 2 बिलावर की, इसमें 2160 है सर। और काइंडली दिस पर्टेन टू माय क्वेश्चन कि वेदर म्युनिसिपल कोर्ट हीरानगर इज एंटाइटल्ड फॉर अपग्रेडेशन और क्रेडिशन ऑफ, मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ सर, इसमें सुनिए। मजा आ गया आपका, इतने सवाल आ गए। अब सुनो ना, मेरी बात भी सुनो। आपका सिंपल क्वेश्चन है कि हीरानगर का म्युनिसिपल कोर्ट जो है, आप उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना रहे हैं। जवाब है कि अभी तक इस किस्म का कोई प्रपोजल आया नहीं। आप तो बाकी कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बाकी कोर्ट्स को यहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में कोई प्रपोजल नहीं है। जवाब आया क्लियर, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर जवाब आया। स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी, मैं स्पीकर साहब ऑनरेबल मेंबर की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कोर्ट, कोई भी कोर्ट, हाई क्रिएशन या अपग्रेडेशन, ये हमारा फैसला नहीं होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन के बुनियाद पे हम करते हैं। फिलहाल जिस कोर्ट की आपने बात की या जिन कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से अपग्रेडेशन या क्रिएशन का हमें कोई रिकमेंडेशन आया नहीं है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आ जाएगा, उसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। जनाब, मैं कह रहा हूं सर, 800 केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, दे आर फ्रॉम माई सब डिवीजन, एंड माई सब डिवीजन हियर कंसिस्ट ऑफ 3 तहसील। आप समझते तो सर, मैं कहूंगा they are not to do it. They are not to do it. It is to be recommended by the High Court of J&K. They are not recommended it so far, so they will not do it. ये so clear है, it is so clear. इनको कन्विंस करने की, देखिए ना,
यहाँ पर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को हम देखिए ना, गवर्नमेंट को हम कहते हैं आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते, लेकिन कोई रिकमेंडेशन आई नहीं, इंप्लीमेंट क्या करेंगे। आप ये सुनिए मेरी बात, अगर आप ये जो दलील देते हैं, आपको किसी और जगह वो दलील देनी है, वहां दलील दे दीजिए, रिकमेंड कराइए, गवर्नमेंट के इशू ऑर्डर प्लीज टेक श्री मोहनलाल भगत जी पूछे सवाल। थैंक यू हॉनरेबल सर। AQ नंबर 1299 मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू। AQ number 1299. There is no proposal in the department to grant separate district status to Akhnur. Agreed, sir. There is no such proposal. But by the time proposal comes or the move is moved to create the district, तब तक मैं हॉनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपल आर सफरिंग, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सब्सिडी ओवर देयर जो डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे ITI पॉलिटेक्निक में बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू में 5 हैं, 2 पॉलिटेक्निक हैं, 2 सर मैं आई वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम स्टेटस टू अखनूर, और आप पॉलिटेक्निक मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। नहीं आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक अखनूर में एक दिया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए। सिमिलरली एक जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता है ADC की पोस्ट दी जाए। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया कि डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बस वो तो नोटिस में आ गया गवर्नमेंट की। तो ऑनरेबल CM साहब से मेरी मीटिंग हुई थी कि एक रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स 2013 से बन रहा था, पेंडिंग पड़ा हुआ है, 4 करोड़ 35 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ है, वो लैंग्विशिंग है। मैं आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम ऑफ द हाउस, लेकिन इससे रिलेटेड है, आपको सुनना पड़ेगा सर। मैं आई जस्ट गो थ्रू द रिप्लाई आई हैव गॉट फ्रॉम द PWD। नहीं, आप क्यों पढ़ रहे हैं वो? आप सुनिए मेरी बात, आपका सवाल जो है वो सिंपल है। सुनो मेरी बात भी सुनो ना, अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप किसी रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सवाल क्लियर है, बोलते रहिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, आप बोलते रहिए। आप इरेलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, जो सवाल आ गया उसका जवाब आ गया। मिस्टर अहमद तारिगानी साहब पूछे सवाल। सर AQ नंबर 784 मिनिस्टर इंचार्ज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। Honorable Speaker, sir, AQ number 784. Honorable Prime Minister, in the year 2009, announced a package for return and rehabilitation of Kashmiri migrants to Kashmir Valley amounting to rupees 1,618.40 crore, which was approved via Cabinet Decision number 130/11/2009 dated 1/10/2009 and notified via Government Order number Revenue/MR/141 of 2009 dated 26/10/2009 and Lecture A. The broader components of the scheme are housing, transit accommodation, continuation of cash relief to migrants, student scholarship, employment, assistance to agriculture and horticulture, waiver of interest on loans, employment opportunities in order to facilitate return and rehabilitate Kashmiri migrants in Kashmir Valley. During 2009, Government of India sanctioned 3,000 posts under PMRP and under PMDP 2016. Additional 3,000 posts were also sanctioned, totaling to 6,000 posts. Against this as post, appointment orders in respect of 5,868 have been issued so far. The remaining 132 posts are in pipeline for completion of selection process. Transit accommodation in order to accommodate Kashmiri migrants. Government applies and PM package in Kashmir Valley. The Government of India further sanctioned the construction of 6,000 transit accommodation. I am going to take action against you. You go to your seat.
Go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. Please go to your seat. Get away. Get away from the house. Get away from the house. Get away from the house. Remove him from the house. Remove him from the house. चलिए Transit accommodation in different district of Kashmir Valley. मिनिस्टर साहब जवाब बड़ा लंबा है जी सर। हम तारिकानी साहब से ये कहेंगे कि सवाल पूछेंगे। थैंक यू सर, जहाँ तक ये सवाल माइग्रेंट्स के बारे में है और पहला ही सवाल मेरी तरफ से था, क्या जो कई सालों से हमारे माइग्रेंट्स हमारी कम्युनिटी के एक हिस्से, खास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और उनके साथ और भी लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल, उस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने 2009 में एक पैकेज, एक स्कीम बनाई, लेकिन आज तक क्या हुआ उस पर, और बहरहाल आज तक क्या हुआ वो तो कहानी होगी। मैं सिर्फ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तवज्जो चाहूँगा, लेकिन ऑनरेबल MLAs वहाँ पहुँच गए। बहरहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कंक्रीटली ये सवाल पूछ लूँगा, क्या हमारी मौजूदा सरकार के पास कोई प्लान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ इंतज़ाम किया जाए और कोशिश की जाए वो तमाम अशखास माइग्रेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वापस जाना चाहे तो उनको एनकरेज किया जाए? ये मेरा सवाल है। ऑनरेबल स्पीकर सर, 1990 में जब ये माइग्रेशन हुई और उस समय हमारे कायद और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जहां तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके दिल में एक दर्द जरूर है और पूरे हाउस के दिल में दर्द है, और कश्मीर के एक एक बच्चे के और जम्मू कश्मीर के एक एक इंसान के दिल में इनके लिए दर्द है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ऑनरेबल MLA साहब का, तारागामी साहब का कंसर्न है, ये कंसर्न हम सब का है और हमेशा टाइम पे जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के, हमेशा हमारी ये कोशिश रही कि ये लोग वापस जाएं और बाइज्जत जाएं, और इसमें हमेशा दिल्ली की सरकार ने भी, हिंदुस्तान की सरकार ने भी हमेशा कोशिश की। अब वक्त पे अलग अलग पैकेज आए और उन पैकेज के तहत चाहे एम्प्लॉयमेंट था, चाहे इनके रहने का कोशिश की, अच्छा बंदोबस्त किया गया, चाहे वो जट्टी में हुआ और भी काफी सारे कैंप है, मैं बड़ी डिटेल में पढ़ सकता हूं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इनका, कि आपने जब भी देखा और हमेशा हमारी कोशिश रही और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश रही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जब भी आई उनकी हमेशा कोशिश रही, आज भी हमारी कोशिश है, और हम ये अपील करते हैं कश्मीरी पंडित के लिए, चाहते हैं कि वो कश्मीर में वापस जाएं, बाइज्जत जाएं और उनके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। लेकिन इसमें हम कोशिश में लगे हैं और तारागामी साहब भी हमारी इसमें मदद करेंगे, और जहां तक ताल्लुक है इस कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, खाली ये नहीं, और भी काफी सारी उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है कश्मीर से जिनको वहां रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, तो इसलिए हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार भी, हम लोगों की मिलकर पूरी कोशिश है। सर, मैंने कंक्रीट सवाल इनका है। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं खुद कन्विंस हूं कि वो पहले से ही चाहते थे कि ऐसा ना हो, हुआ, बाद में ये कोशिश की कि उनको राहत मिले, सब ठीक है। आज ये पूरे हाउस का कंसर्न होना चाहिए मेरी नजर में, उनकी वापसी का सवाल है। मैं अब उसमें दो राय नहीं, अब क्योंकि सरकार है यहाँ, अवामी सरकार है, अगर कल तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज की सरकार को कुछ इस सवाल को अपने एजेंडे पर रखना चाहिए ताकि उनकी वापसी के बारे में जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। दूसरा सवाल इसी के साथ सर मैं ये भी कहूँगा, कुछ माइग्रेंट्स हैं इसी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखने वाले जो बेचारे बहुत मुश्किल हालात में भी वही रहे, उनको सजा क्यों? प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में क्या उनको नहीं लाया जाना चाहिए? वो गांवों से गए हैं, वहां श्रीनगर शहर में है, बेघर हुए हैं, ये अलग सवाल है, जम्मू नहीं आए लेकिन श्रीनगर में आए,
तो उनके पैकेज का, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज है, उनको आज तक डिप्राइव रखा गया। और इसके साथ ही सर, माइग्रेशन इज माइग्रेशन, और मिजरीज को भी अगर हम खानों में तकसीम कर ले, ये मेरा हुआ, ये आपका हुआ। कई लोग हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो इस वजह से निशाना बने क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया या उनकी वाबस्तगी थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। किसी की पार्टी ये थी, वो थी, मेरी थी, उनकी थी। अब 1300 वो लोग हैं जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। मुझे ये बताइए, अभी तक 2 साल हो गए उनको रिलीफ लिए हुए, 2 साल, और 2024 में मुझे सवाल में जवाब मिलता है कमेटी बन गई। मैं इस सरकार को मोरीदी इल्जाम उस पर नहीं ठहरा सकता हूं क्योंकि अभी 4 महीने ही हुए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, उनका कसूर क्या? ये दोहरा मेयार क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों कि कोई माइग्रेंट हो जाए एक वजह से, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी से, कोई भी हो, वो तो मुसीबत ज़्यादा है, उसको सजा मिले। मेरे ख्याल में इसके बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए। हाँ राणा साहब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा एक प्रश्न था कि एक SRO 425 है, जो ये एम्प्लॉयमेंट का पैकेज है, उसमें वर्ड लिखा हुआ है नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। वाई नॉट नॉन माइग्रेंट सिख्स एंड हिंदूस? इसको ऐड करना चाहिए। और जो डोडा एंड अदर पार्ट्स के माइग्रेंट्स हैं, उनको भी एट पार विद इनको पैकेज देना चाहिए और उनको भी रिहेबिलिटेशन पैकेज देना चाहिए। ये आपका सुझाव है। हाँ वीरी साहब पूछे क्या? मैं मेरी गुजारिश है सरकार के सामने, ये जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी है, जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने घर आबाद करना चाहते हैं अपनी लोकेशंस पे, क्या सरकार उनको मोबिलाइजेशन अमाउंट, क्योंकि हमारे पास 1618 करोड़ रुपया है, तो क्या सरकार उनको रिनोवेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए उनके प्रॉपर जगहों पे एनकरेज करने के लिए पैसा क्यों नहीं दे सकती? शुक्रिया स्पीकर साहब, ये जो जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, मेरा एक सप्लीमेंट्री था, वो ऑनरेबल तारिक आमी साहब ने ऑलरेडी पूछा भी। जो 1300 लेफ्ट ओवर है जिनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलती थी ये माइग्रेशन के, उसके साथ साथ एक तो उनका क्या करेंगे बेचारों का, अगर उनकी कमेटी बन रही है, वो चाहे सिख कम्युनिटी से, मुसलमान कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, दे आर लेफ्ट ओवर। सर 1300 है, 1250 से 1300। सर उसके साथ साथ क्वार्टर्स ऑलरेडी बने हैं, ये मटन में बने हैं, शांगस में बने हैं, जेवन में, कंप्लीटेड, दे आर ऑल कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट। सर उनको अलॉटमेंट क्यों नहीं की जाती है ताकि वो जो डिजर्विंग है उनको वो क्वार्टर्स मिल जाते? हाँ शौकत साहब। शुक्रिया सर। सर मैं सरकार की नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि 2023-24 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो माइग्रेंट नहीं हुए थे, पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो वहीं पे थे, लेकिन 23-24 में उन पे अटैक हुआ जिसमें से एक की जान चली गई और एक जख्मी हुआ। जो इंजर्ड हुआ वो फिर 5-7 महीने के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। लेकिन सर जो उनकी फैमिली है ना, उनको माइग्रेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, हालांकि क्वार्टर यहाँ पे मिला है, लेकिन जो इसको खाने पीने के लिए जो पैसा मिलने थे सर वो नहीं मिल रहे हैं। और हाल ही में मैंने ये रिलीफ कमिश्नर के पास गया उनकी एप्लीकेशन लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बैन है। और सर वो इस वक्त भी जम्मू में है, ना उनको पैसा मिल रहा है, ना जो माइग्रेंट बेनिफिट्स है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो स्पेशल केसेस है उनके लिए ये माइग्रेशन जो बेनिफिट्स है उनको मिलने चाहिए। हाँ सैफुल्लाह साहब पूछे। सैफुल्लाह साहब सवाल। सर मैं आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। सर मेरा सवाल है, माइग्रेंट्स 2 किस्म के हैं, एक तो मिलिटेंसी विक्टिम्स जो हैं, दूसरे पॉलिटिकल विक्टिम्स जो हैं, जो सियासी लोग हैं जो विक्टिमाइज हो गए हैं, वो भी माइग्रेंट हो गए। मैं एक तो है पंडित कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में तारिक आमी साहब ने बात की, मैं मुस्लिम माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मिलिटेंसी से विक्टिमाइज हो गए या पॉलिटिकली वो हमारे साथ या किसी पार्टी साथ मुंसलिक थे, उनको माइग्रेंट होना पड़ा। 1250 ऐसी फैमिलीज हैं जो बाज़ाब्ता तौर रिलीफ ले रही थी, उनकी बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन हो गई थी पिछले कई दहाइयों से, उनका रिलीफ सब कुछ जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल की गई हो और उनका रिलीफ वगैरह सब कुछ बंद किया गया है। एक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने
कमेटी को भी कई साल हो गए बनी हुई, लेकिन वो कमेटी अभी तक उनका जो केस है उसको डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि क्या वजह है कि उन बेचारों को अभी तक दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ये सवाल है सर, ये जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं इनको जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज को अकोमोडेशन दी जाती है, वो भी अपने घरों से निकले हैं, वहां से भागे हैं घरों से, उनकी कोई अकोमोडेशन है, उनको भी अकोमोडेशन उसी तरह से दी जाए जिस तरह से पंडित कम्युनिटी के लोगों को अकोमोडेशन दी जाए। हाँ मंकुजा जी बताइएगा। इसी माइग्रेंट का ये हमारे इलाके से माइग्रेंट हुए हैं। स्पीकर सर, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एमएलए साहब, मैं करना थोड़ी गल हालत है कि कोई इंसान ही नहीं जहाँ वो रह रहे हैं, 20 सालों से एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो कश्मीर में एक वक्त कैसा हालात बने जिसमें आम नागरिक को उस हालात में निशाना बनाया गया, और कश्मीर से भी और जम्मू से भी, और गवर्नमेंट ने उस टाइम स्टेप्स लिए गए कि उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। इसमें कश्मीरी पंडित हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जम्मू के माइग्रेंट हैं, कश्मीर के माइग्रेंट हैं। सर ये रिव्यू किया जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि जैसे मेरे कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने कहा कि बड़े वर्षों से, जो रिसेंटली 2, 4, 5, 10 वर्षों में भी लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफी एक मुश्किलात हालात में है। इसी तरीके से मैं कहूंगा, जैसे एमएलए साहब रियासी के हमारे कह रहे हैं, हमारे तलवाड़ा माइग्रेंट, सर तलवाड़ा माइग्रेंट अगर एक सिचुएशन पूरे स्टेट में एक उभरी बराबर सिचुएशन थी, एक एरिया के लोगों को हमने रिलीफ कैश काइंड और बाकी जो दिया, लेकिन ये तलवाड़ा माइग्रेंट को आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, और वो भी कोर्ट में जाके थोड़ा बहुत उनको राशन मिलता है। तो मेरा ये गुजारिश है कि दोनों पूरे जो माइग्रेंट हैं उनको एक ही तर्ज पे लेना चाहिए, और सीएम साहब को इसमें पर्सनली एक बार मीटिंग लेके इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि महकमा इनके पास है। स्पीकर सर, मैं बहुत ही लाइव इशू इन्होंने बताया है। The bullets are as painful and purposeful may be fired in Jammu as well as Kashmir. ये मैं अपनी तकरीरी हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूँ। तो इन्होंने जैसा कहा है, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है? और जो स्पेसिफिक जो पार्ट एच है, इस पर चर्चा नहीं हुई है कि जो श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो वहां पे डैमेज किए गए हैं टर्मोइल के पीरियड में, उनको रिस्ट्रक्चर करना, उनको रिफर्बिश करना और फिर रिस्टोर करना उस कश्मीरी पंडित्स को, उसके बारे में सरकार का क्या एक्शन प्लान है? मैं ये दो बातें सरकार की नजर में लाना चाहता हूं, और सरकार से इस जय साहब मैं जो बजट पढ़ रही है उसका प्रोविजनल लिस्ट पहले ही निकला हुआ, पहले ही वो जो अलॉटीज का है प्रोविजनल लिस्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें डिले क्यों हो रहा है? उनको वो क्यों नहीं अलॉट किया जा रहा है, ताकि वो जो उनकी जो पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, वो खुद दूर हो जाती। दूसरी बात है कि हम जो तारिक अमीन साहब ने पॉलिटिकल माइग्रेंट्स की बात की, जो सियासी वजूहात की बिना पर जो उन्होंने जिक्र किया 1300 के करीब है, उनका मुझे लगता है किसी डिले के बगैर ही उनका समाधान होना चाहिए। उनका जो भी उनकी जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर की जानी चाहिए। आपको कुछ कहना है तो इनको जवाब देने दीजिए ना, ये बहस होगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल जितने भी मेंबर्स हैं, इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, और मैं भी उस परिवार से आता हूं जिसने ये दर्द सहा हुआ है माइग्रेशन का। जब 47 में ये यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, मैं उस परिवार से हूं जहां हमारे परिवार बिछड़े हुए हैं, और आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी फैमिली से रोते रोते चले गए, लेकिन उनका कभी मिल नहीं सके वो वापस जाके। तो लिहाजा इनका कंसर्न बड़ा जायज है, और जहां तक ताल्लुक है, जो इनकी सजेशंस हैं उसको हम एग्जामिन करा लेंगे, और बड़ी जेन्युइन है, और ये खाली किसी एक इलाके का नहीं, चाहे खिता चिनाब वैली है, चाहे खिता पीर पंचाल है, कश्मीर है, या पहाड़ी इलाका हमारा कंडी है, हर जगह से माइग्रेशन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी इनका कंसर्न है वो हम एग्जामिन करा लेंगे, और जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगे। डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब पूछे सवाल। सर, एक नंबर 75 मिनिस्टर इंचार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, AQ number 75. Yes, the school education department has received demands for upgradation of various schools of Badgaum district, including middle school Mazhama, girls middle school Kanihama, middle school Rasu, and middle school Charangam and SK Pora, Ratsan and R Pathan. However, the school education department has no immediate proposal for upgradation of schools, as a large number of schools have already been upgraded, and the department is presently focusing on creation of regarding required infrastructure and providing staff to all schools, especially the upgraded ones.
Moreover, the education department faces shortage of teaching staff as no recruitment of teachers could be made for last 5 years due to freezing the post of general line teachers, White SAC decision number 2018. The upgradation of schools involves huge financial implication for creation of infrastructure and posts of teaching staff, which requires concurrence from the finance department. Given the financial position of Jammu and Kashmir at present, it is not possible to arrange the required financial resources for the upgradation purposes. Besides, for upgradation of schools, fulfillment of laid down criteria and norms is prescribed. However, as and when the department process upgradation of school, the above said school of Badgam district shall be considered. Yes, पूछिए आप सवाल। अपग्रेडेशन में जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा की डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स है, मैं पूरी तरह से वो मानता हूं और समझता भी हूं, लेकिन जहां तक इन स्कूल्स का ताल्लुक है, ये एज फार एज फिजिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरे वो इंडिकेटर्स कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत अपग्रेडेशन का सिलसिला शुरू करेगी, क्या ये स्कूल उस टाइम प्रायोरिटी पर होंगे या नहीं? सर, मैंने पहले बता दिया कि जब भी अपग्रेडेशन शुरू होगी, फिलहाल तो डिपार्टमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की जो शॉर्टेज है उस पे फिलहाल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद जो बैन लगाया गया है नए रिक्रूटमेंट पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा जहां ज़रूरत थी, जहां डिमांड थी, वो नहीं बनाया गया है। लेकिन अब डिपार्टमेंट इस वक्त जो है इस पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको हम पूरा कर सकें। हर लेवल पे जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ज़रूरत है उसको फराहम किया जाए ताकि अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं है कि अपग्रेडेशन हो, यहाँ पे भी आप अपग्रेड करेंगे, वहाँ पे भी अपग्रेड करेंगे, फिर ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना वहाँ स्टाफ होगा। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब अपग्रेडेशन होगी, जब हम स्टार्ट करेंगे 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, उस वक्त जो ये गाँव इन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछे थे, इनको जरूर एग्जामिन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, और अगर ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उस वक्त जरूर इनको कंसिडर किया जाएगा। खुर्शीद अहमद, पूछिए सवाल। 549 Minister in charge of Youth Service and Sports. Honorable Speaker, sir, the Government of India has sanctioned 4 numbers of projects under Khelo India scheme during year 2018-19 and released funds amounting to rupees 14.75 crore, against which rupees 13.67 crore stands incurred. Out of 4 projects, 2 numbers of projects have been completed and are functional, and 2 projects are under process. The details of the sanctioned projects are as under: 1. Construction of synthetic hockey turf at Polo Ground, Srinagar. Number 2, construction of synthetic hockey turf at KK Haku Stadium, Jammu. Number 3, construction of synthetic athletic track at Tulibal Sopor, Baramulla, work in progress. Number 4, construction of indoor sports hall at Shalinar, Bargam, work in progress. Khelo India scheme is a centrally sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, which is based on a state-wise and is not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme in Langet constituency for the development of sports infrastructure. However, the following play fields have been developed under CAPEX amounting to rupees 191.25 lakhs in Langet area. First is play field at Panditpura, Langet, rupees 85.02 lakhs. Second is play field at Ashpura, rupees 23.13 lakhs. Third is play field at Kutladi Mawar, rupees 1196 lakhs. Fourth is football ground at Kulangam, rupees 12 lakhs. Fifth is open air gym at Kulangam, rupees 20 lakhs. And sixth is roller skating at Government Girls High Secondary School, Langet, 39.14 lakhs. सर जी मेरा सप्लीमेंट्री है मिनिस्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि जो आपने कहा कि 13.67 CR जो स्पेंड किया गया है, क्या 18-19 का आपने कहा है,
18-19 के बाद क्या कोई पैसा नहीं आया? और दूसरा ये कि क्या इन 4 प्रोजेक्ट्स के सिवा जो क्या एक्टिविटीज के लिए कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ? और दूसरा मेरा इसमें सप्लीमेंट्री है कि जो प्ले फील्ड्स आपने कहे कि डेवलप हुए लंगेट में, क्या गनापुरा, मागाम, चोगुल, पोरूपेट, नुतनुसा और भी कुछ प्ले फील्ड्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए आप क्या करें? जैसे कि कल ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ सर इस पर बात हुई है, और जो अहद हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार गवर्नमेंट ने लिया है कि लोगों को नशे से दूर करके, मोबाइल से दूर कर ग्राउंड तक ले जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। माजी से सर सबक लेना बहुत जरूरी है। वी आर आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग द पास्ट मिस्टेक्स एंड आई अश्योर ऑनरेबल एमएलए साहब जो भी इन्होंने बात करी है उस पर जो पास्ट की गलतियां हैं उनकी निशानदेही की जा चुकी है, और उस पर बैठकर बात करेंगे, और जो आपकी ग्रीवेंसेस है उनको हम हल करेंगे। चलिए, शुक्रिया। मोहतरमा शमीमा फिरदौस। 18-19 के बाद और 3-4 प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या एक्टिविटीज के लिए कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ? सर मैं जवाब दूंगा। 692 एक नंबर 692 ये 18 के बाद तो दिक्कत रही है, अब मुझे लगता है 24 के बाद ही रफ्तार तेज होगी सर, और हम अश्योर करते हैं लंगेट को हम इग्नोर नहीं करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। AQ number 692. Yes, sir. An amount of rupees 27.07 crore has been released for the purpose till date. As per the tripartite agreement between Housing and Urban Development Department, JKPDD and EESL, Messrs. EESL is maintaining the street lights post installation along with warranty replacement during the project period of 7 years ending 2027. सर, इसमें मेरा क्वेश्चन है, जो इन्होंने जिक्र किया है 27.07, इट इज ए ह्यूज अमाउंट जो इनको अलॉट प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स। लेकिन बात यह है कि जब हम देखते हैं शहर श्रीनगर को, वहाँ पे हमें किसी भी जगह ऐसी लाइट्स नहीं मिल रही है। ऑफ कोर्स इन्होंने किसी जगह लगाई है, लेकिन सिर्फ 4 या 5 दिन के बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो लाइट्स खराब हो जाती है। जब हम इनके साथ बात करते हैं एसएमसी के साथ, चूंकि इन्होंने लिखा ये यहाँ पर HUDD भी, लेकिन उनके साथ कोई इसका कंसर्न होता नहीं है, कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ एसएमसी की ड्यूटी है। PDD वाले भी कहते हैं कि हमारा काम नहीं है कि हमें मेंटेन करें, या हमें फिर से नए सिरे से, उन्होंने लिखा है कि हम फिर से इंस्टॉलेशन इनकी करते हैं। ये सारा ही जो ये इन्होंने बोगस दिया है जवाब, न ये फिर से इंस्टॉल करते हैं और नहीं इनको ठीक करवाते हैं। वो सारे के सारे जो लाइट्स है और ये जो पैसे है, ये सारा कुछ जाया हो गया है। पिछले दिनों से जब यहाँ पे असेंबली शुरू हो गई, सप्लीमेंट्री सर, जब असेंबली यहाँ पे शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें फोन किया कि कहाँ पर लाइट खराब हो गई है, लेकिन अभी तक वो कोई भी लाइट ठीक उन्होंने नहीं की। मैं सर से पूछ रही हूँ, प्लीज ये हमें दें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर, मैंने डिटेल जवाब में ऑनरेबल मेंबर साहिबा को पहुंचा दिए। बीच बीच में जहां पे लाइट खराब हो जाती हैं, इस एग्रीमेंट के तहत जिन्होंने इंस्टॉल किए उनकी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। अगर कहीं पे आपकी जानकारी है कि ये नहीं हो रहा है, वो जानकारी आप हम तक पहुंचा दीजिए, हम मौके पे उसको एग्जामिन करवा के जहां ठीक करना होगा हम करवा देंगे। क्वेश्चन ओवर इज ओवर। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब